الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ میں اپنے جوانوں کو سب سے پہلے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی شادی اور نکاح مسنون کے آغاز میں ذکر رسول کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ساری زندگی ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ
माँ की ममता भरी गोद से फूल जैसी बेटी छीनता, गड़ा खोद के धक्का देकर ऊपर मिट्टी डाल देता। अगर कोई बाप इतना जालिम था, इतना सफाक था, तो वो इस काबिल था कि वो माशरे में सर उठाकर जी सकता है। और अगर किसी के हाथों में इतनी सकत नहीं कि वो अपनी जिंदा बेटी का गला दबा सके, तो वो इस काबिल नहीं था कि माशरे में सर उठाकर जी सके। ये अरब माशरा है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी बयान किया है। वो अमलन बेटियों को ज़बा किया करते और बहनों को जिंदा दरगोर कर दिया करते। जिस दौर में बेटी ज़बा की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, मेरे हुजूर उस दौर में कलिमा हक बुलंद किया और हुजूर मैं बेटियों को ज़बा करने वालों सुन लो, फातिमा तू बिदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी है। देखिए आज मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस माशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस माशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप झुकी हुई कमर पे बोरियां लात लात के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जवान साल भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो जबा करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था। इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज है आमीना के लाल का, ये फैज है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और जबा होती हुई बहनों को जिंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा को नमाज, एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आज बड़ा अजीब वाकया हुआ। हुजूर मैं आयशा आज क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक हबशिया नयात औरत आई और उसने आकर दरवाजे पर सदा लगाई। मैंने घर में तलाश किया कि कोई चीज मिल जाए तो मैं साहिल को सदका कर दूं। तलाशे बिसियार के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली और मैं उसको वही सदका कर दी। हुजूर उसने उस खजूर के दो टुकड़े किए, एक दाई जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर माँ खुद भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क्यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो ये बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगी, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाई से शर्मो नंगवार समझी जाती थी और कहाँ बेटियां ही दुखूले जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बेटियां या दो बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहां तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी, तो मेरे हुजूर माते इतना खुशकिस्मत शख्स है, कल क्यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये दो उंगलियां आपस में करीब हैं। ये एजाज, ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफा की होगी। बहनें क्या होती हैं, ये जमाने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम का ना कोई सगा भाई था और ना कोई सगी बहन। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम है, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ ले गए, तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रजाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही हो। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखिए कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखिए कितनी प्यारी। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देता। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होता ही सारा रंगत में है।
मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिटा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन भी हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती और कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। हुजूरे वाला ऐलान नबूवत के बाद नहीं, 2 हिजरी में 313 सहाबा के साथ 1000 लश्कर कुफार की कमर तोड़ देने के बाद नहीं, 10,000 सिपाहियों के लश्कर के साथ मक्कातुल मुकरमा को बगैर तलवार के फतह कर लेने के बाद नहीं, खुतबा हज्जतुल विदा के दिन 1.5 लाख के करीब सहाबा को खुतबा दीन देने के बाद नहीं, मेरे हुजूर तो वो हैं जो बहन की गोद में भी सरदार ही लगा करते थे। और फिर दुनिया में नहीं, सिर्फ कल महशर का मैदान होगा, 1,24,000 के करीब कमो बेश अंबिया और रसूल अपनी अपनी मस्जिदों पे जलवा फिरास होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले उम्मती से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मती तक, और फिर मेरे हुजूर के पहले उम्मती से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी उम्मती तक लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान महशर के चटियल मैदान में लाकर खड़े किए जाएंगे। इन खरबों इंसानों का महशर जिनके कदमों में होगा वो मेरे हुजूर होंगे। आपने कभी, बात सिर्फ समझाने की मिसाल दे रहा हूं, यह मिसाल बनती नहीं लेकिन सिर्फ बात समझाने के लिए, आपने कभी कोई बहुत बड़ा जलसा जो है वो देखा हो, स्टेज पर बड़े बड़े उलमा बैठे हों और जो आलिम जो खतीब गुफ्तगू करने के आता है तो नीचे उसके चाहने वाले जो है वो खड़े होते हैं और वो बड़े फख्र से कहते हैं कि अब हमारे हजरत साहब खिताब कर रहे हैं, अब हमारे खतीब साहब हैं, अब हमारे पीर साहब आए हैं। कोई कहता है अब हमारे लीडर बयान करने लगे, तो जो बता रहा होता है उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। ये कोई मिसाल नहीं है यार, कल महशर का मैदान लगेगा, खरबों इंसान महशर के मैदान में खड़े होंगे, 1.25 लाख के करीब मस्जिदों पे अंबिया जलवा फिरास होंगे, सब खामोश होंगे और जिनका खुतबा सुनने के लिए मुंतजिर होंगे वो मेरे हुजूर होंगे। तो फिर हम, अल्लाह ने चाहा तो हम महशर के मैदान में कहेंगे जिनकी बात सुनने के लिए सारे चुप हो गए हैं वो हमारे नबी हैं। अल्लाह अकबर, कैसा कैसा लुत्फ होगा। अल्लाह अकबर, हम फख्र से कहेंगे जिनको सारे देखने के लिए आज आए हुए हैं वो हमारे नबी हैं। फिर हम कहेंगे खरबों इंसानों की बिगड़ी जिनकी जुबान मुबारक से बनेगी वो हमारे नबी हैं। आज रब किसी से बात नहीं करेगा, 1.25 लाख के करीब कमो बेश अंबिया और रसूल होंगे, मुख्तलिफ नबियों के पास उम्मतें जाएंगी और कहेंगी हमारी बात रब से करो, लेकिन वो यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। इन खरबों इंसानों की बात किसी से नहीं होगी, 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल, रब बात किसी से नहीं करेगा, जिनकी बात से बात रब करेगा वो मेरे हुजूर होंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर मुझे बताओ, जिनके कदमों में खरबों इंसानों का महशर हो तो वो फिर उस दिन महशर के मैदान में सरदार ही होंगे ना। अल्लाह अकबर। तो हमें और आपको, मुझे और आपको मुबारक हो कि हम एक सरदार नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हुए। अल्लाह अकबर। तो हजरत शीमा का सर फख्र से बुलंद होता और वो हुजूर अलैहिस्सलाम को सीने से चमटा लेती और दुआ देती, रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, शाला मेरे वीर मोहम्मद को नजर ना लगे। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, तो कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार है। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी होगी। मदनी दौर की कहानी है। इत्तिफाक ये हुआ कि जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए, कुछ को कैदी बनाकर सहाबा अपने साथ ले आए। अरब के रिवाज के मुताबिक
कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने के लिए निकले। हर दरवाजे पर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम की जमा की जा रही? तो कहा कि मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़े हैं, हमने अपने कैदी छुड़ाने। तो पूछा कि उसका नाम क्या है? किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल पे हाथ रखकर बताओ, हुजूर का नाम आया, कलेजे तक ठंड नहीं पहुंच गई है? अल्लाह अकबर। यार जिनका नाम इतना मीठा है उनका लहजा कितना मीठा होगा। अल्लाह अकबर। जिनका नाम इतना सुरूर देता है उनके चेहरे की जियारत का लुत्फ क्या होगा। तो एक अरसे के बाद हुजूर अलैहि सलाम का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा उन्होंने तुम्हारे बंदे पकड़े? कहा हाँ उन्होंने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ो, सिर्फ मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी? कहा तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊं। कहा तुम उनको जानती हो? कहा हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन के वीर और भाई लगते थे, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊं। हजरत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयात नाजिल हो चुकी। खबरदार मेरे रसूल की आवाज से आवाज भी ऊंची न कर, वरना जिंदगी की सारी कमाई गारत करके रख दो। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे। हजरत शीमा इस ख्याल से कि मैं अपने भाई को मिलने जा रही हूँ, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी और रास्ता रोक दिया। हजरत शीमा ने यूं हाथ से तलवार को झटक के कहा, खल्लू सबीली वालमु अना उख्तु नबीयुकुम। कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती हूँ। ये आवाज कानों में पड़ी तो सहाबा की आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई। निगाहें नीची कर दी, तलवारें पीछे हटा दी। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर इस्लाम के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया, मेरी बहन आज किधर को आना हुआ? अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़ लिए हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर मैं मेरी बहन, तूने आने की जहमत क्यों गवारा की? तू घर बैठे भी पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे ही सारों को छोड़ देता। जमाने को बताया दरवाजे पर बहन का आना कितना मोतबर है। फिर चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान, और मेरे हुजूर खुद बहन को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आ गए। सहाबा निगाहें नीची किए महबूब अलैहिस्सलाम के अदब में खड़े थे कि हुजूर मैं सहाबा में जब भी कैदी छोड़ा करता हूँ पहले तुमसे मशवरा भी किया करता हूँ। आज पहला मौका है, मैं कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज की ए बंदा नवाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें, हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा करने वाले। लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी खास बात थी कि आपने मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा? हुजूर मैं सहाबा, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी, और जब बहनें दरवाजे पे आ जाए अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। वक्त सिमट रहा साहिबो, जिस दौर में बेटी जबा की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, जिस दौर में माँ जैसा रिश्ता भी मंडियों और बाजारों में बिक जाता था, उस दौर में बीवी की क्या हैसियत होगी। जबकि आज के इस तहजीब याफ्ता दौर में भी कुछ लोग बीवी को पाँव का जूता ख्याल करते। ये जमाने जाहलियत की बातें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अज़वाजे मुत्तहरात के साथ जो हुस्ने सुलूक की दास्तानें रकम की हैं, जमाना उनकी मिसाल नहीं ला सकता। किसी को मेरे हुजूर हुमैरा कह के पुकारते हैं, तो किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बा करते हैं और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत के साथ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र किया करते। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को नहीं भूलते। फरमाती भी हुजूर के चेहरे पर जलाल आ गया
اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. کہانوں سے کیسے بلا سکتے ہو جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے. عرض کی کہ حضور مجھے جو بخار ہے لگتا ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. یہ وہ رشتوں کا تقدس ہے. کیسا خوبصورت دین حضور لے کر آئے. بیوی سے فرمایا اگر میری شریعت میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن رب کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں. بلکہ ایک مقام پر یہاں تک فرما دیا، فرمایا وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، یعنی اس نے اپنے شوہر کی اتنی اطاعت اتنی فرما برداری کی کہ جب اس کی سانس ٹوٹنے لگی تو وہ شوہر اس کے اوپر خوش تھا کہ اس نے میری وفا کا حق ادا کیا. تو میرے حضور ماتے اتنی خوش قسمت عورت ہے کہ جس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا. حضور ماتے اے عمر کل قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہ اس عورت کو اعزاز ملے گا جس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی. عورت کو کہا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور اگر اس اطاعت میں تم کامیاب ہوئی تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اور مرد جس کو گھر کا حاکم بنایا گیا اس کو کیا فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو کوئی ایسی بات بھی تو ہوگی اس میں جو تمہیں اچھی لگتی ہوگی. مطلب کیا، تم اچھی بات کو دیکھ کر گھر جوڑنے کی بات کرنا، کوئی خامی دیکھ کر گھر توڑنے کی بات نہ کرنا. کیسا خوبصورت نسخہ کیمیا گھروں کو جوڑنے کا دیا. آج ہمارے یہاں فہرست بنا لی جاتی ہے، اس میں یہ خوبی بھی نہیں، اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ویسے بات تو مسکرا کے سنایا کرتے ہیں لیکن بڑی سبق آموز بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب نکاح کے موقع پر پوچھا جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تو کہا جو 3 مرتبہ قبول کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا صرف خوبیوں کے ساتھ قبول ہے، وہ یہ کہتا ہے 3 مرتبہ قبول ہے، خامیاں بھی ہوں تو قبول ہے، خوبیاں بھی ہوں تو قبول ہے. تو کہا اگر انسان اس نکاح کو سمجھ جائے، وہ 3 مرتبہ اقرار اسی بات کا کرتا ہے، تو خوبیاں تو ساروں کو اچھی لگتی ہیں. لیکن اگر کسی میں دیکھیں پھول آپ لینا چاہتے ہیں تو ساتھ میں کوئی کانٹا تو آ ہی جائے گا، کیونکہ آپ خرید بھی تو پھول رہے ہیں تو پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں. لیکن کوئی شخص کہے نہیں مجھے بغیر کانٹوں کے ہی پھول چاہیے، تو پھر اس کو رک کر سوچنا ہوگا، اس کو پھر پھول نہیں ملیں گے، اس کو کوئی اور چیز ملے گی. تو جہاں خوبیاں ہوتی ہیں خامیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں. خوبیاں دیکھنے کا مزاج پڑے، آپ کے دل کو سکون ملے گا. اگر آپ خامیاں اکٹھی کر رہے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف خامیاں اکٹھی کریں تو ہمیں صرف عیب ہی نظر آتے ہیں. میرے استاد المکرم ایک دن فرمانے لگے بیٹا گند پہ بیٹھنے والی مکھی کبھی نہ بیٹھنا، شہد والی مکھی بن جاؤ. تو ہم نے کہا حضرت اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرمانے لگے بیٹا جو گند پہ بیٹھنے والی مکھی ہوتی ہے نا، سارا بدن پاک صاف ہو، خوشبوؤں سے مہک رہا ہو، لیکن اگر کچھ چھوٹا سا زخم ہو وہ صرف وہاں آ کے بیٹھتی ہے، اس کو پھولوں میں خوشبوؤں میں مہکتا ہو بدن نظر نہیں آتا. لیکن جو شہد کی مکھی ہوتی ہے
वो कड़वे फूल पे भी बैठे तो अपने हिस्से का शहद निचोड़ लिया करती। खूबियां देखो लोगों में, अपने घरों में खूबियां देखने का मिजाज पैदा करो। जब खूबियां देखो, देखिए मर्द और औरत को अल्लाह ने बनाया ही ऐसे है। मर्द अगर बाहर की जिम्मेदारियां निभा रहा है, मैं मानता हूं बड़ा मुश्किल है इस दौर में 4 या 6 बच्चों का पेट पालने के लिए न जाने कहां कहां पे मजदूरियां मेहनतें कर करके वो पैसे कमा के लाता है। लेकिन मुझे बताएं, वो पैसे लेकर आया, लेकिन बच्चों की तरबियत हो रही है, बेटियों की तालीम हो रही है, घर में मेहमान आ रहे हैं उनको इज्जत मिल रही है। ये चीजें पैसों से तो नहीं मिलती हैं। उन पैसों को इज्जत, मोहब्बत, प्यार में किसने तब्दील कर दिया? ये फन अल्लाह ने औरत को सिखाया है। तो दोनों की जिम्मेदारी, अगर सिर्फ पैसे हो तो फिर तो घर नहीं चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ पैसे ही ना हो तो फिर भी मसला है। तो इस्लाम कैसा खूबसूरत दीन है, मर्द को बाहर की जिम्मेदारियां दे दी और औरत को घर की हकमियत में, उसके इख्तियारात में उसको भी हिस्सेदार बना दिया। मर्द बाहर के दूर दोप से आता है, तो जब वो थका हुआ आता है तो औरत, आप देखे तो सही, वो सारा दिन बच्चों की तरबियत में रहती है, फिर शाम का खाना बनाती है, और एक ऐसा अंदाज है कि वो मर्द खाना खाने के बाद जाके सो जाता है, लेकिन औरत सारे बच्चों की जरूरियात, उनके बिस्तर सेट करने के बाद आखिर पे खाना खा के किचन समेट के वो आखिर पे आके सोती है। अच्छा, अभी मर्द सो रहा होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन वो सुबह की तैयारी के लिए घंटा पहले उठ जाती है। आखिर सोई भी वो सबसे पहले आखिर में थी, लेकिन उठना भी उसने 1 घंटा पहले है, क्योंकि मर्द के जाने से पहले उसका खाना, उसका नाश्ता, उसका लिबास तैयार करना है, बच्चों के यूनिफॉर्म तैयार करने हैं, उनके नाश्ते तैयार करने हैं। वो कभी नहीं कहती कि ये क्या बात हुई, सोई भी मैं सबसे आखिर और जागू भी मैं सबसे पहले। वो इसको अपनी सादत समझती है। तो फिर मर्द को सोचना चाहिए कि मेरा ही कमाल नहीं, इसका भी तो कमाल है। अगर ये सबसे आखिर में सो रही है, जाग भी सबसे पहले रही है, अगर मैं 8-10 घंटे बाहर दे रहा हूं तो घर में तो यही है जिसके पास मेरे बच्चे अमानत है और वो मेरे बच्चों की तरबियत कर रही है। मैं, बड़ी अजीब बात लगी मुझे, एक मेरे पास साहिब आए तो वो कहने लगे कि मैं कोई फैसला करना चाहता हूँ, अब मैं तंग पड़ गया। तो मैंने कहा कि खैरियत हो, अल्लाह आसानी फरमाए, तो अगर आप आ ही गए मेरे पास तो आप मुझसे बात शेयर करेंगे। तो उसने काफी खामियों की एक फहरिस्त जो है मुझे सुनाई। तो मैंने कहा आप करते क्या है? तो कहने लगा मेरी फैक्ट्री है। तो मैंने कहा आपकी फैक्ट्री में कितने मुलाजिम? कहने लगा 200 के करीब है। तो मैंने कहा वो जो 200 मुलाजिम आपकी फैक्ट्री चला रहे हैं वो सारे एक तरह के? कहते नहीं। मैंने कहा कोई ऐसा तो होगा जो आपका सबसे पुराना होगा और जो काम बहुत अच्छा जानता है, अगर आप किसी वक्त किसी गमी खुशी में चले जाए वो आपकी फैक्ट्री संभाल लेता है। कहने लगा बिल्कुल। मैं कहा कुछ ऐसा होगा? कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो 2-3 लड़के हैं। अच्छा, मैं कहा जो सारा काम संभाल लेते हैं, कभी ऐसा भी तो होगा वो लेट आते होंगे? कहते हाँ कभी हो ही जाता है। मैं कहा कभी ऐसा भी तो होगा वो छुट्टी कर लेते होंगे? कहता हाँ कभी ऐसा तो होता है। मैं कहा कभी ऐसा भी तो होगा वो एडवांस मांग लेते होंगे? तो हाँ। कहते हाँ ऐसा तो। मैंने कहा फिर आप उनको क्या करते हैं? बहुत छुट्टी करो, नहीं देना एडवांस। कभी ऐसा हुआ? मैं कहा अगर वो लेट आए तो आप क्या कहते हैं? कहते कि बस वो फिर मोहब्बत से बात करते हैं, क्योंकि सारी फैक्ट्री तो उसके सर पे चलती है। मैंने कहा यार कैसी बात है, 200 बंदों को चलाने का गुर जानने वाला एक बेटी और एक औरत को नहीं चला सकता। ये मसला है। वहां हमें पता है अगर इसकी छुट्टी करवाऊंगा तो मेरी सारी फैक्ट्री इसके सर पे है, तो उसकी गैर जरूरी छुट्टी भी हम कहते अच्छा बेटा कोई बात नहीं, छुट्टी बता के किया करो, बस काम शुरू करो। उसको सुबह सुबह हम डांटते नहीं, क्योंकि हमें पता सारा, अगर सुबह सुबह इसका मूड खराब कर दिया तो ये सारा दिन काम जो है वो सही तरह नहीं करेगा। हम मुस्कुराते हो कहते हैं खैर थे ऐसी ना, फिर कल छुट्टी की थी। हमारा लहजा नरम होता है उसके लिए, क्यों? उसको हमें पता है इसकी सर पे फैक्ट्री चल रही है। काश हमें पता लग जाए इसकी बदौलत मेरे बच्चों की तरबियत हो रही है। अगर इससे कोई बर्तन टूट गया, इसने कह दिया मैंने मेके जाना है, तो मैं लहजा मीठा रखूं, जिस तरह उस वर्कर को जिसके सर पे मेरी फैक्ट्री चल रही है, वो रवैया जो हमारा एक वर्कर से होता है होना, तो इधर मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री से ज्यादा मेरे बच्चे हैं जो मैंने इसके हवाले कर दिए हैं। और अगर इसका लहजा तल्ख हुआ तो उसकी तरबियत का असर मेरे बच्चों पे पड़ेगा। अगर माँ गुस्से में आ गई तो बच्चों को उनके नफ्सियात डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे स्कूल में बैठे डिस्टर्ब होंगे, क्या सुबह सुबह घर में लड़ाई देख कर आए हैं। यार हम वर्कर को नहीं डांटते, क्योंकि सारे मुलाजिम इसके तहत है, और मैंने अगर इमरजेंसी निकलना पड़ गया, मेरी फैक्ट्री करोड़ों की लाखों की इसके हवाले है। लेकिन कैसा अजीब इंसान है जो लाखों की या हजारों की दुकान या फैक्ट्री चलाए, उसका हम नखरा भी बर्दाश्त करते हैं।
उसका लेट आना भी बर्दाश्त करते हैं, उसकी गैर जरूरी छुट्टी भी बर्दाश्त करते हैं। हमें भी आ रहे थे, तुम्हारे दोस्त कह रहे थे, दिल तो करता था छुट्टी करवा दो, लेकिन जारी बात है कारीगर है, लाख रुपया उसने एडवांस भी लिया, लेकिन हम कहते हैं कोई मसला नहीं, इसी से तो कमाते हैं, जिससे कमाते हैं उसको लाख एडवांस भी दिया, वो छुट्टी भी नखरे से करता है, सारे नखरे भुगते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री इसके बलबोते पर है। काश हमें पता लग जाए जो हमारे घर में बैठी वो पराई नहीं, वो मेरे बच्चों की माँ है और मेरे बच्चों की तरबियत इसके हाथ में है। कोई बात नहीं, अगर इसने आज कह दिया कि मैंने जो है वो मेके जाना है 4 दिन के लिए, तो अब इसको मोहब्बत से ही समझाओ। जैसे हम टैकल करते हैं ना, सारे फन हमें आते हैं बाहर अपने मुलाजमों को चलाने के लिए, लेकिन ईद आ जाए तो हम तोहफा भी लेकर देते हैं, ताकि हमें पता है ईद की 3 छुट्टियां 6 महीने का सीजन इसलिए लगवाया है। तो अगर सीजन ऑफ है तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, 10 दिन छुट्टी कर ली है, तो सीजन भी तो इसने लगवाया है। कभी हम ये भी तो सोचें, अगर छुट्टियां आ ही गई हैं, इसने कह दिया मैंने मेके 4 दिन के लिए जाना है, तो जिस वक्त कड़े दिन थे, सख्त हालात थे, मेरे पास बहुत ज्यादा कमाने को भी नहीं था, तो ये दौड़ धूप में मेरे साथ खड़ी रही थी। अब अल्लाह ने असूदगियां दे दी, अब ये कहती है कि एक काम वाली रख लेनी चाहिए, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं, मेरी सेहत भी, लेकिन हम उसी तरह नहीं चलाते। जब हालात बदलते हैं तो हम जो है वो एक्स्ट्रा जो है पे भी करते हैं, वर्कर को मोहब्बत भी देते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं, इनसे तो कमाया था। तो जो आपके दुख सुख में साथ रही, आज अल्लाह ने हालात बेहतर कर लिए हैं, जो मोहब्बतें बाहर निछावर करते हो, हक तो ये है, तालीम तो ये, उससे ज्यादा मोहब्बतें हमने अपने घर वालों पे, मेरे हुजूर ने कितनी बड़ी बात कमाई, मैं तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतरीन है। ये मैं एक दिन होटल पे गया, तो वो गाड़ी का दरवाजा जो है गनमैन ने खोला, तो हम होटल में चले गए और दोस्त साथ हम वापस आए, तो उन्होंने पहले दरवाजा खोला और हम अंदर बैठ गए। तो पीछे सीट पे जो दोस्त बैठे थे वो कहने लगे कि इस गनमैन के अखलाक बड़े अच्छे, हम जब भी आते हैं इसी मोहब्बतों से नमाजते हैं। तो मैंने कहा आपका अंदाजा है और आपकी बात अच्छी है, मैं इसकी नफी नहीं करना, लेकिन मैंने कहा इसकी वजह यह है कि इसको हमने जाते हुए 100 रुपया पकड़ाना है, तो ये हमारी गाड़ी का दरवाजा भी खोल रहा है, वापसी पे बंद भी कर रहा है, ये इसका कारोबार है। मैं कि इसके अखलाक का पूछना है, इसके घर वालों से पूछ लो। जहां 100 देना पड़ता है वहां क्या मेयार होता है? 100 आ रहा हो तो फिर तो दरवाजा खोलने को भी दिल करता है, 100 जा रहा हो तो फिर मेयार क्या होता है? मेरे हुजूर ने यूं ही नहीं फरमाया था तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी घर वालों के लिए बेहतरीन, और फरमाया मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतरीन हो। तो हमें अखलाक ये दिए गए। मैं आज की इस नशिस्त को मुकम्मल कर दूं और ये बात कहूंगा कि खूबियां भी लोगों में होती हैं, खामियां भी होती हैं। अपने घरों को जोड़ो, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, उल्फतें बांटो, और अगर अल्लाह ने तुम्हें वुसअतें दी हैं, सबसे पहले अपने घर वालों के लिए उसके लिए आसानी पैदा करो, उसके लिए अपने बच्चों के लिए आसानी पैदा करो, अपनी घर वाली के लिए आसानी पैदा करो। मेरे हुजूर ने यहां तक फरमाया, तो मैं 3 दिरहम है, एक उसने राह खुदा में खर्च किया, एक उसने सदका कर दिया, और एक उसने अपने अहले खाना पे खर्च किया। हुजूर माते अगर मुझ मोहम्मद से पूछो तो रब को सबसे ज्यादा वो प्यारा लगता है जो उसने अपने अहले खाना पे खर्च किया। अपने अहले खाना पे खर्च करो, अपने बच्चों की जरूरियात पे खर्च करो, अपनी घरवाली की जरूरियात के ऊपर खर्च करो, अपने माँ बाप की जरूरियात पे खर्च करो, अपने बहन भाइयों पे खर्च करो। ये बेहतरीन सदका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इस बंधन को क़यामत तक नस्लों में मोहब्बतें रखे और आने वालों को खुशियां नसीब फरमाए। जो निकाह के मसनून के अय्याम आ रहे हैं, अल्लाह उनको रहमतों का हिसार अता फरमाए, और ये बंधन दो खानदानों में हमेशा प्यार मोहब्बत और उल्फत के फूल उगाता रहे। बातमी में कल बारगाह रुबूबियत में दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप अहबाब को एक दावत देकर इजाजत चाहूंगा। आप अहबाब को एक नंबर नोट करवाना चाहूंगा, और उस नंबर का फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत करीब सन 2021 में इदारतुल मुस्वाल का पतोकी की तंजीम साजी करना चाहते हैं और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हम वर्कर्स में देना चाह रहे हैं। अगर आप नंबर नोट कर लेंगे तो जो नौजवान दरसे कुरान इदारतुल मुस्वाल के प्लेटफॉर्म से करवाना चाहें या उसके लिए काम करना चाहें तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आपको रोजाना की बुनियाद पर किबला मुस्तफा साहब का वीडियो क्लिप भी हम शेयर करेंगे, खुद भी सुनिए, अपनी औलादों को भी सुनाइए। और तीसरा फायदा ये होगा कि जब कभी इंशाल्लाह किबला हज़रत तशरीफ लाएंगे तो अहबाब की मुलाकात और उनसे जो है वो गुफ्तगू सुनने का फैज़ भी हमें नसीब होगा। देखिए हम अपना मैं
یہ دین کا کام ہے اور یہ سالانہ محفل تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور کے, تو ان سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ اتوار کی چھٹی کرتے ہیں یا جمعے کی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں جی, نہ جمعے کی اور نہ اتوار کی. حالات ایسے ہیں کہ ہم تو 24 گھنٹے اور 7 دن ہفتے میں کام کرتے ہیں. تو میں نے وہاں سے یہ اسے بات کہی اور مجھے ایک بات ملی. میں نے کہا کہ اپنا کاروبار 24 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن اور سال میں 365 دن, کوئی چھٹی نہیں. جس نبی کے نام پر ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں, ان کے دین کا کام سال میں 1 مرتبہ. یہ میرے پر بھی سوال ہے, یہ آپ پر بھی سوال ہے. ادارت المصطفیٰ نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کو خطابت یا نوٹوں کا ذریعہ نہیں بنایا. ادارت المصطفیٰ کا خاصہ یہ ہے کہ باتوفیق باری تعالیٰ میرے حضرت کو 26 سال ہو گئے لوگوں کے پاس قرآن کا پیغام لے کر پہنچتے, اور ہم نے دیکھا ہے کڑکتی دھوپ ہو یا برستی بارش ہو, ہم نے حضرت کے لبوں پہ قرآن کا پیغام سنا ہے. اور 26 سال میں تحدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. پیسے لینے تو بڑے دور کی بات ہے, کوئی شخص ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے خطابات کیے, کوئی شخص میرے حضرت کے رویے کا لالچ بھی نہیں ثابت کر سکتا. وہ شخص سچا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیغام نافذ ہوا ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے ایسا مرد مجاہد بھیج دیا کہ جو سچی سچی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے. یہ موقع غنیمت جانیے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضرت ہمارے گھر آ جائیں, ہمارے شہر آ جائیں, لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. 26 سال سے وہ یہ خدمات پیش کر رہے ہیں, اب صحت میں بھی گنجائش نہیں. اور الحمدللہ ادارت المصطفیٰ ایک نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان کے شہروں میں المصطفیٰ اسلامک سینٹرز کی ہم برانچیں بنا رہے ہیں تاکہ مدارس کھڑے کیے جائیں اور لوگوں تک دین کا پیغام زیادہ مؤثر انداز میں پہنچے. تو اس کار خیر کو اب ہم نے آگے لے کر چلنا ہے, اور ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. الحمدللہ ادارت المصطفیٰ کے مبلغین بھی نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں. ہم صرف جوانوں سے یہی کہتے ہیں کہ جو پیغام دین آؤ حضرت نے ہمیں سنایا, کریا کریا نگر نگر بستی بستی اس محبت کی پیغام کو پہنچا دو. ان سے وفا یہی ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع روشن رکھیں. اور یہ نمبر نوٹ کر لیں, ہمارے دوست جاوید مصطفی صاحب ہیں, تو آپ جب کبھی انشاءاللہ ہم 2021 میں جو نئی تنظیم سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم آپ جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. 0300 4257 904 42 57 904 0300 42 57 904. دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیں, بعض کا ایک پہ رابطہ نہیں ہوتا. یہ طارق مصطفی صاحب ہیں, 0300 47 94 175 0300 4794 175. اس نمبر پر اپنا نام, اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے تو ہمارے دوست آپ کا نمبر سیو کر لیں گے. انشاءاللہ جنوری کے اندر ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہلکا پتوں کی میں وہاں درس قرآن کا بھی ٹائم انشاءاللہ رکھیں گے تاکہ ہر مہینے میں آپ کے پاس حاضر ہو سکوں, اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ آپ کے حلقہ جات کر کے بنا کر آپس میں کام بانٹ لیں گے تاکہ کام کو ہم بہتر طریقے سے آگے لے کر بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے میزبان نے بتایا کہ ابھی نعت خوانی کا سلسلہ باقی ہے, تو آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے. آپ کی محبت میرے سے اپنی جگہ, لیکن یہ ذکر رسول کی محفل ہے اور آپ تھوڑا سا رستہ مجھے دے دیں گے تاکہ محفل کا ڈسپلن اور نظم و ضبط برقرار رہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق